27ویں آئینی ترمیم کا بل جو ہے وہ پیش کرنے جا رہی ہے آج وفاقی حکومت. جن چیزوں پہ اتفاق رائے ہوا ہے ان میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک پرانا فیصلہ تھا اور وعدہ تھا قوم کے ساتھ ایک آئینی عدالت کے قیام کا، اس پہ اتفاق رائے ہوا ہے. جو ججز ٹرانسفر ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سپرد کی جائے. کچھ عہدے ہیں جو کہ پہلے آرمی ایکٹ میں تھے لیکن 73 کے آئین کے وقت ان کا ذکر نہیں ہو سکا، جس میں ایک عہدہ فیلڈ مارشل کا ہے، اور یہ تجویز دی گئی ہے کہ یہ جو اعزاز آپ نیشنل ہیروز کو ان اعزازات سے نوازتے ہیں تو یہ آیا ان کے ساتھ تاحیات رہنا چاہیے، یہ تجویز ہے. وفاقی کابینہ نے 27ویں ترمیم کے مسودے کی منظوری دے دی. وزیر قانون اعظم نذیر تاہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اجلاس میں آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق کیا گیا. پارلیمنٹ میں تجویز پیش کی جائے گی. فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات رہنا چاہیے. بل آج ہی سینٹ میں پیش کیا جائے گا. ججز کے تبادلوں کا معاملہ جوڈیشل کمیشن کے سپرد کیا جائے گا. چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے بلا تعطل انتخاب کو یقینی بنایا جائے گا. ہر 3 سال بعد سینٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخابات بھی آئینی ضرورت ہے. سینٹ میں صوبوں کا حصہ 11 سے 13% کرنے کی تجویز دی گئی. ایم کیو ایم کی بلدیاتی انتخابات سے متعلق تجاویز بھی زیر غور آئیں گی. آئینی ترمیم قانون اور انصاف کے مشترکہ قائمہ کمیٹی کے حوالے کیا جائے گا تاکہ تمام تجاویز سے حاصل بحث کی جائے. وزیر اعظم شہباز شریف نے باکو سے ویڈیو لنک پر کابینہ اجلاس کی صدارت کی. سینٹ کے آج ہونے والے اجلاس کے ایجنڈے میں 27ویں آئینی ترمیم پیش ہوگی. اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا. وزیر قانون اعظم نذیر تاہر اسلامی نظریاتی کونسل کی سالانہ رپورٹ پیش کریں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اسٹیٹ بینک بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سالانہ رپورٹ پیش کریں گے. مالی سال 2024-25 میں معاشی کارکردگی رپورٹ بھی ایوان میں پیش کی جائے گی. پیپلز پارٹی کا آرٹیکل 243 سمیت 3 نکات پر حکومت کی حمایت کا اعلان. 27ویں آئینی ترمیم میں دوہری شہریت کے خاتمے اور NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کے شیئرز میں کمی مسترد کر دی. اہم معاملے پر PP کے بڑوں کی بڑی بیٹھک ہوئی. بلاول بھٹو نے کہا کہ آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہیں. ججز ٹرانسفر پر تجاویز تیار کی. صدر کے اختیارات اور سول سپریمیسی کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. مسلم لیگ نے بلدیاتی نظام سے متعلق کسی ترمیم کی بات نہیں کی. حکومت سے مشاورت کر کے دیگر نکات پر بات کریں گے. حکومت کا کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانے کا پیش رفت ہے. اصولی طور پہ بالکل اس آئیڈیل کے ساتھ ہے. اگر ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ساتھ ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کا اگر دوسرے پوائنٹس پہ بھی کنسنسس بن سکتے ہیں اور اس پہ بھی عمل درآمد کسی طریقے سے ہو سکتا ہے تو وہ بھی ایک ویلکم سٹیپ ہوگا. آئین کہتا ہے کہ صوبے کے جو NFC ایوارڈ کے مطابق شیئر ہے وہ بھر سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. اس کا تحفظ پاکستان پیپلز پارٹی کریں گے. 26ویں ترمیم سے دستبردار ہونے والے نکات پر اگر دوبارہ 27ویں ترمیم میں کوئی چیز لائی گئی تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. اس کو ہم آئین کی بھی توہین سمجھتے ہیں کہ کل 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا اور آج کھینچ تان کے آپ پتہ نہیں کس طریقے سے 2/3 اکثریت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں. صوبوں کے اگر حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے جمعیت علماء اسلام بھرپور مخالفت کرے گی اس کی. مولانا فضل الرحمان کا آئینی ترمیم کی حمایت سے انکار. کہا پارلیمنٹ حقیقی مینڈیٹ والی نہیں جو 27ویں ترمیم کرے. پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں JUI سربراہ نے کہا کہ حکومت کی طرف سے کوئی مسودہ نہیں آیا. صوبوں کو حاصل اختیارات میں کمی کی مخالفت کریں گے. صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ برداشت نہیں کیا جائے گا. ایسے اقدامات کو آئین، جمہوریت اور پارلیمنٹ کی توہین سمجھ سے ہیں. کھینچ تان کر 2/3 اکثریت حاصل کی جا رہی ہے مگر اس کا نقصان ہوگا. مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق بھی کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. پارٹی کی سیاست کا سوال ہے. اگر وہ اپنی سیاست بچانا چاہتی ہے تو اس کے لیے مکمل طور پر اس جو بھی یہ پیکیج آ رہا ہے اس کی مخالفت کرنی چاہیے.
क्योंकि उनके बिलावल भुट्टो की नाना और उसकी वालिदा की बहुत जमहूरियत की खिदमत है। पीपल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो 18 अमेंडमेंट के लिए और इस आइन के लिए खड़े हों। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दे, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। असद कैसर ने कहा कि जमहूरियत के लिए बिलावल के नाना की बहुत खिदमत हैं। अदालतों में केसेस सियासी बुनियाद पर हो रहे हैं। मुल्क में नफरतें बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लार्जर बेंच के फैसले पर अमल दरामद ना होना सवालिया निशान है। मुल्क में अमनो इंसाफ नापेद हो चुका। जरूरत है कि अदालतें अपना बुनियादी काम करें, जिसके लिए जजेस को खड़ा होना है। अगर जजेस खड़े होंगे तो आवाम उनके साथ खड़े होंगे। मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से कबल ही मामला अदालत पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्विज़ा 27वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। अदालतों के दायरे इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ करने की सदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती जायज़े के इख्तियारात को ख़त्म, मुअत्तल या मुतवाज़ी निज़ाम से तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आईनी मामलात नहीं सुन सकेंगी। दरख्वास्त सीनियर वकील बैरिस्टर अली ताहिर की जानिब से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में भी 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर तबादले ख़याल। तिजारत समेत दीगर शोबों में कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। सदर आज़रबाईजान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। सदर आज़रबाईजान ने जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मार्का हक ने दुनिया में पाकिस्तान के तस्वुर को बदल दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत में हमारे मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में खिताब। बोले, भारत ने खुद को इलाके का थानेदार समझ लिया था। हमारी मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से भारत को दंदान शिकन जवाब दिया गया। मानचेस्टर के बाद लंदन से भी कौमी एयरलाइन की परवाजें जल्द शुरू होंगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदे के सबब जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल होगी। एहसन इकबाल में पाकिस्तान हाई कमीशन में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात भी की। अफगान हठधर्मी और भारत नवाज पॉलिसी ने अमन दाव पर लगा दिया। इस्तांबुल मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बातचीत खत्म हो चुकी, अगले राउंड की कोई उम्मीद नहीं है। अफगान वफ़द चाहता था उनका ज़बानी एतबार किया जाए, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात के दौरान की गई हतमी बात तहरीरी तौर पर की जाती है। हमारा खाली हाथ वापस आना दलील है कि सालिसों को भी अफगानिस्तान से कोई उम्मीद नहीं। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वैसा ही जवाब देंगे। कतर और तुर्की की जानिब से मौक़िफ़ की तायीद करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। भारत के हालिया बयानात गुमराहकुन और हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि अमेरिका ने सदर ट्रंप के बयान से मुतल्लिक़ अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी तजुर्बात पर मुकम्मल पाबंदी की करारदादों की हिमायत करता है। भारत का उन करारदादों से इज्तनाब इसकी मशकूक नीयत को ज़ाहिर करता है। भारत का जौहरी सलामती का रिकॉर्ड इंतहाई तशवीशनाक है। दफ्तर ख़ारिजा का आलमी बरादरी से भारत के जौहरी सिक्योरिटी खला पर संजीदा नोटिस लेने का मुतालबा। चीन की दरामद गवादर पोर्ट के जरिए करने पर गौर। वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत पर 60% दरामद गवादर के जरिए मुमकिन बनाने के फैसले पर अमल दरामद का जायजा। वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में पोर्ट कासिम पर रश की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर का कहना था कि चीनी और सीमेंट की अनलोडिंग तेज की जाए। जहाज़ों की बर्थिंग पहले आओ पहले पाओ उसूल के तहत यकीनी बनाने और इदारों को कार्गो शेड्यूल से बरवक्त आगाही देने की भी हिदायत की। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की जान बचाने के लिए अहलिया की आलमी मुदाखलत की अपील। मशाल मलिक ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम ओपन लेटर लिख दिया। मशाल मलिक ने कहा कि भारतीय अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। यासीन मलिक की जिंदगी खतरे में है। 10 नवंबर की अदालती कार्रवाई रोकने और यासीन मलिक को फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम करने की अपील। ये एक बीवी और माँ की इंसानी अपील है। अगर जान बची तो ये दिलों का नोबेल होगा।
पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के बारे में बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने एहसान फरामोशी की हदें पार की हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला KP कौमी यकजहती के खिलाफ बयान ना दे। सुहेल आफरीदी सियासत में सिक्योरिटी इदारों को कमज़ोर ना करें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस खराब करने की कोशिश की गई है। तुर्किया ने गजा में नस्ल कुशी पर इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर के मुताबिक इस्राईली वज़ीर दिफा, कौमी सलामती के वज़ीर और सेहोनी फौज के सरबराह समेत 37 ओहदेदारों के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए। बयान में कहा गया कि इस्राईली हुक्काम ने गजा में मुनज़्ज़म तौर पर इंसानियत के खिलाफ जुराइम किए। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली फौज ने रेड क्रॉस से लाश वसूल करने की तस्दीक कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक लाश को शनाख्त के लिए फोरेंसिक इंस्टीट्यूट मुंतकिल कर दिया गया। लाश की शनाख्त होने के बाद घर वालों से राब्ता किया जाएगा। दूसरी जानिब सेहूनी फौज की जानिब से जंगबंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। काबिज फौज ने शजाइया में ड्रोन हमला करके बच्चे को शदीद जख्मी कर दिया। दूसरी जानिब इसराइली आर्मी चीफ का फौज को गजा में तमाम सुरंगें तबाह करने का हुक्म। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं बल्कि पायदार तरक्की के दरवाजे खोलने की कुंजी है। आसिफा भुट्टो की शहजादी सबिका इब्राहिम अल खलीफा आलमी अवार्ड की तकरीब में शिरकत। कहा यह अवार्ड ख़वातीन की शमूलियत, इंसाफ और मौक़िफ़ की नुमाइंदगी करता है। ममलकत बहरीन की बसीरत अफरोज़ क़यादत और इस बामानी इक़दाम को ख़िराज तहसीन पेश करती हूँ। पाकिस्तान में ख़वातीन की बाइख्तियारी गैर मामूली ख़वातीन के विजन और जुर्रत की अक्कास है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी एक बार फिर इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर, AQI 336 रिकॉर्ड। माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा का रिकॉर्ड। कई इलाकों में धुंध पड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका। बिखरे हुए समंदरी तूफान कालमागी ने फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद वियतनाम का रुख कर लिया। मूसलाधार बारिशों और तूफानी हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। 3000 के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। उधर फिलिपाइन में कालमागी की तबाहकारियाँ तबाही की खौफनाक दास्तानें छोड़ गईं। 188 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 132 अफराद का हाल लापता। दुबई में ICC की बोर्ड मीटिंग। ज़राए के मुताबिक बोर्ड मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और UAE बोर्ड की पाकिस्तान और भारत के दरमियान मफाहमत की कोशिशें। मौक़िफ़ बताया गया कि पाकिस्तान और भारत बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के अहम रुकन हैं। ICC मेंबर बोर्ड की मुशावरत से पाक भारत ताल्लुकात बेहतर करने के लिए करारदाद पेश करेंगे। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की बोर्ड मीटिंग में शिरकत की गई। करारदाद में कहा गया कि एशिया कप के मामलात पर भी बातचीत, ट्रॉफी का मसला मुशावरत से हल करेंगे। वन डे सीरीज किसके नाम होगी? फैसला फैसलाबाद स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज फैसला कुन मैच में आमने सामने होंगे। पहले मैच ग्रीन शर्ट्स, दूसरा प्रोटीज के नाम रहा। आज के मैच के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान। खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन। रफ्तार और महारत एक साथ। थल जीप रैली की स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले आज होंगे। स्टॉक कैटेगरी में 45 से जायद मर्द और खवातीन रेसर्स हिस्सा लेंगे। रेस के लिए कोट अद्दू, लिया और मुजफ्फरगढ़ के इलाकों पर मुश्तमिल 190 किलोमीटर ट्रैक तैयार। ट्रैक का मिड पॉइंट लिया की तहसील जोबारा में बनाया गया। कल प्रीपेड कैटेगरीज के मुकाबलों का इनेकाद होगा।